હાય આપણે આઝાદી આવી ત્યારે it is so surprised that Mountbatten was the last viceroy, and after we got the freedom on the 15th August. Actually, the Congress leadership, Jawaharlal Nehru and Sardar Patel, went to him and says that, can you, we want to keep your position as it is for next 6 months to 12 months. So he was so surprised. He says like, उनको सरप्राइज लगा कि लाइक हमको यहाँ से निकालने के लिए तुमने इतना लंबी लड़ाई करी, अभी हम निकल रहे हैं तो तुम लोग बोल रहे कि थोड़ा ठहर जाओ. बोला नहीं, बिकॉज वी हैव ऑल अवर ईयर्स इज इन फाइटिंग द पावर, बट वी वेर हैव नॉट अ सिंगल experience to running the power, not inside the power. So we want to know under your leadership how it works, and then we're going to eventually take it inside our leadership. So I think Mountbatten agreed as a first viceroy for they created the new position for him, and after that there's a Rajaji became that, and then there's a president come as a Rajendra Prasad. So after that, like when we see the Indian government and the worker and all the people who work in the government, all their mentality is just ये जो काम मिला है बस उसको पूरा करना है as it is, without disturbing anything. They don't want to disturb anything. They don't want to, there is no creativity in anything, changing anything. Like let's say कि ब्रिटिश ने 1850 1860 में एक इंडियन पिनल कोड बनाया है, उसका वही का वही रहने दिया. उसको इंडिया के हिसाब से कुछ चेंज करना है, कुछ नया डालना है, कुछ वापस करना है, कुछ नहीं. देयर इज़ नो चेंजेस इन एनीवेयर. वही रवैया सब सरकारी बाबुओं का भी रहता है कि लाइक वो जब हायर होते हैं एट द एज ऑफ 22 24 25, दैट जैसे वैसे करके एज 58 पहुंच जाना है और बस 25-30 साल की नौकरी करना है और फिर शांति से पेंशन खाना है 30-40 साल का. 30 साल की नौकरी, 40 साल का पेंशन, बस. और जब पेंशन खाते हो तो सिस्टम में क्या ख़राब है, कितना ख़राब है, बस वही देखना है, उसकी चर्चा करनी है. जब सिस्टम में होते हैं तो कुछ करते नहीं हैं, कुछ उसमें बदलाव लाने का ट्राई नहीं करते हैं, कुछ नया सोचने का ट्राई नहीं करते हैं. लाइक ऊपर से नीचे सेम थिंग. लाइक आई विटनेस द वन scientific institute. It's a huge institute. It's a institute where like most of the scientists work with the PhD degree. And I gave some research product. I don't want to give the name of the institute because it's too personal then. And I gave the name of the research, and the guy who is working on my project, he took me to his boss inside the office, and he like almost bend हो जाता है अपने कमर से, इस तरह से बात करता है, साफ सर जी साफ करके, जैसे ये मुग़ल दरबार है और उसमें जो दरबारी बात करते थे तो वो 3 बार 4 बार हाथ हिला के इस तरह से बात करते हैं. वो PhD है, दोनों PhD है, उसका बॉस भी PhD है, वो जो आदमी है वो मेरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो भी PhD का ही है. Why you guys have to behave that? I know their promotion and their daily activities is controlled by the boss, but that is the same thing in the private sector. I don't know what is so different in a government sector, especially in India. Like there is a government sector all around the world. I see here also in America there is a government working, but nowhere working like India. It's too much power to each boss, and I don't know, they take advantage of them for everything. And that boss, like जो बॉस के सामने वो कर रहा है, वो बॉस अगर वो उसके भी बॉस के पास जाएगा तो वो सेम तरीके से बिहेव करेगा. अभी इसमें तो कुछ चेंज लाने का होता ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ अपने बॉस को ही खुश करना है. That's all their job, and as long as you do that, you can keep your job and keep getting your salary. That's all is the matter. देश का क्या होता है, दुनिया का क्या होता है, उनको क्या ले रहे हैं.
हमारे यहाँ पूरा सिस्टम ही सड़ गया है। आई थिंक वो जो गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होती है वो भी इसी तरह से ही होती है, उसके ऊपर ही होती है। उसमें कोई उन लोगों का आईक्यू टेस्ट नहीं होता है, उसकी क्रिएटिविटी टेस्ट नहीं होती है। पूरा सिस्टम मैस्ड अप कर दिया है। लाइक सेम चीज़ के लिए 2 to 3 एजेंसी से परमिशन लेनी पड़ती है। और उसमें क्या होता है कि जो 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 पहचान वाला होता है या ऊपर से ऑर्डर आता है वो तुरंत हो जाता है, और जिसकी पहचान नहीं होती है, जिसका ऊपर से ऑर्डर नहीं आता है, वो सालों के साल चलता रहता है। मीन्स वो भी गलत है ना। वो जैसे कि योगी आदित्यनाथ अगर कोई इलीगल काम करता है और इसके तौर उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है अपने घर का या उसका, तो वो सीधा लखनऊ से ऑर्डर करते हैं, वो सिटी के कोडिंग डिपार्टमेंट से या कहीं से भी, और वो जो इलीगल स्ट्रक्चर है वो कोई क्रिमिनल का, उसको डिमोलिशन करा देते हैं। वो इलीगल स्ट्रक्चर रिगार्डलेस डिमोलिशन होना चाहिए, उसके ऊपर हमेशा बनते ही एक्शन होना चाहिए। वाई नॉट इन दैट सिटी जिसमें ये डिमोलिशन हुआ, रिगार्डलेस वो आदमी क्रिमिनल का है या दूसरे का है। इलीगल वर्क मीन्स इलीगल वर्क, ऑल इलीगल वर्क मस्ट बी डिमोलिश्ड, पीरियड, एंड ऑफ द पॉइंट, दैट्स इट। वाई द वो मुख्यमंत्री को ऑर्डर करना पड़ता है और उसके ऊपर फिर बाद तुम सुपरसोनिक स्पीड से काम करते हैं, वो भी गलत है। वो ऐसा सुना है कि जो इंडिया में फायर इंस्पेक्शन 7 स्टोरी से कम वाली बिल्डिंग है उसका होता ही नहीं है। उसका क्या महीना है? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यू हैव टू इंस्पेक्ट एंड मेक रिस्पॉन्सिबल ईच एंड एवरी बिल्डिंग। मैं अमेरिका में बिजनेस करता हूँ, डिफरेंट टाउन में होता है, वो फायर हाइड्रेंट रखना ही पड़ता है। वो आके साल में 1 बार 2 बार चेक करते हैं फायर डिपार्टमेंट गिव यू check you for the violation code. When the city come and the fire department come, they checking 2 to 3 times a year, and they making sure your exit is accessible. All the time there is a fire happen, they always says about the exit was blocked, there is a chain there, this is like so many stories all the time. Why not fire inspector go in a field and like सब जगह जाके इंस्पेक्शन करे फायर एग्जिट का, पैसा लेने की बात नहीं करे। वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो नया धुन निकालेंगे उसमें। 2 फायर इंस्पेक्टर को भेजो और एवरीडे डिफरेंट पार्टनर्स, नॉट द सेम पार्टनर्स, और उन लोगों को बोलो ऑल दे हैव टू चेक इज द फायर हाइड्रेंट इन करंट कंडीशन में है कि नहीं, और अकॉर्डिंग टू एरिया, ये एरिया में इतना चाहिए, ये एरिया में इतना चाहिए, वो होना चाहिए वहाँ। और जो एग्ज़िट है वो कितनी है और वो ब्लॉक है कि नहीं, बस इतना ही चार्ज करना है। पता नहीं, सिंपल चीज़। वो जो सेफ्टी चेक करता है, वो इंडिया में हो या अमेरिका में, लॉ तो सेम होता है। से लोग का जो अमल होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है। जो इंस्पेक्टर तुम्हारे यहाँ अनाज चेक करने के लिए आता है, वो अगर भेड़सेर को ओके करता है, वो तेल की भेड़सेर को ओके करता है, तो तुम बोलते हो अरे यार पैसा कमाना है, क्या करे, इसके बिना काम नहीं चलता। वो लोग क्या करते हैं, क्या हम ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे। अगर वही इंस्पेक्टर जाएगा तो वो ओके करेगा भेड़सेर वाली मिठाई भी, तो तुमको वो भी खानी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों को भेड़सेर वाला तेल खिलाते हो या अनाज खिलाते हो। फिर बाद में दवाई पे बात आती है। अगर दवाई में भेड़सेर हुई तो तुम बोलते हो कि भेड़सेर वाली दवा लेने से किसी का मौत हो गया, किसी का डिसीज क्योर नहीं हुआ। तो जो इंस्पेक्टर अनाज चेक करने आता है वो भी मेडिसिन चेक करने आएगा, लेकिन नॉट द सेम पर्सन बट फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ द डिपार्टमेंट इज डिफरेंट, but same kind of the things going on in a food department and the medicine department, and then they come to the pharmacist and for the medicine. That they cannot do that. It is a noble profession. Why? They don't have children, they don't want to take a vacation like you, they don't want to buy the 4-wheeler like you, so
if you want to make sure everything is fine, it should be everything, not only the anai or only the medicine and the doctors. You have to think about that.